Okay, so let's start with the previous revision. In the previous video, you learn about that how can you add the spread. There are four options. First is the choose the spread. Second is the paint. Third is the surprise. Fourth is the upload spread. Then now we are going to learn next thing the background. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी स्प्रिट है वहां के पीछे एक वाइट बैकग्राउंड रहता है. सो वी आर गोइंग टू ऐड नाउ अ नेक्स्ट थिंग दैट इज अ बैकग्राउंड. आपको पता है कि वेन एवर यू आर ओपन योर लैपटॉप देर इज अ स्क्रीन और स्क्रीन पे एक इमेज रहती है दैट इज कॉल्ड द बैकग्राउंड ऑल्सो. Similar options are also available for the background और the backdrop of the stage. आप उसको backdrop भी कर सकते हो हमारे scratch में. That is the other name in the of the background in the scratch is the backdrop. So same thing. जहाँ पे split का option है पास में ही होता है backdrop का option. So let's see it with the example. Here you can see this is my scratch screen. Now this is the split, adding split. Now this is the adding a backdrop. Same होता है, choose a backdrop, paint your own, surprise and upload. Whenever you click on the gallery, so there are many galleries, images are available on the gallery. Even there are also specified in the fantasy, music, sport, outdoor, indoor, space, underwater patterns. राइट आप कोई भी चूज कर सकते हो यहाँ से. फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू टेक दिस सो इट विल बी टेकन फॉर यू. फॉर सेकेंडली दिस इज अ पेंट. आपको खुद का पेंट करना हो तो आप यहाँ से पेंट कर सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पेंट कर रही हूँ. आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल, क्रिएट अ स्मॉल होम, then using this arrow, this is help to. Okay, now next I'm going to create a simple home, changing the color of them. Mhm. Okay, now create a one home, door, taking a line. This is a door. आप इस तरह से अपना बना सकते हो. कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है मैंने जो बनाया है आप वही बनाओ. You can create your own. I'm create a one window for you also. It's slightly not staged. Okay, so this is I make a simple demo for you. आप अपना बना सकते हो. Then third option is for the random surprise. वो कोई भी अपलोड होके यहाँ पे आपको दिखाएगा. That will be choose any of here. Then fourth is the upload. That is images upload from your computer. आपके कंप्यूटर में जो भी अवेलेबल होगा वो यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाएगा. जैसे कि मेरे पास ये वाला इमेज है तो मैं उसको ओपन करके यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ like this. So this is the use of that how can you add your backdrops background. Next, for example, I am adding a random spread, but I don't like this spread because it's not matching with the cat. Now how can you delete any of this spread? We can delete the spread on the stage in case we do not require it. To delete a spread, right click on the spread in the spread list and then select the delete option from the menu. This is the first way that you can delete a spread. I am also adding a one random. Here there is a one unicorn and here there is a one
एंगल. सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिलीट द यूनिकॉर्न. सो आप उसके राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो वहां से आप डिलीट कर दोगे. सेकेंड मेथड, यहाँ पे आप एक डिलीट सिंबल देख रहे हो जहाँ पे क्रॉस साइन भी है. तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाली स्प्रेड डिलीट करनी है, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो. इफ यू वांट टू डिलीट दिस वन, सो यू कैन डिलीट इट. इस तरह से आप 2 वेज में डिलीट कर सकते हो. So first two things we are learning. First, that how can you add the backdrop. Second, how can you delete the spread that will be not for your use. Now it's time for the blocks. यहाँ पे आप देख सकते हो different blocks दिए हुए हैं that are used to create an animation for the spread. I am also going to delete the backdrops. For example, I don't like this, so you can delete it here. You can delete like this. Okay. So now these are the blocks. We have to be learn them one by one. First, a spread can be moved on the stage using the blocks present in the motion group. अगर आपको किसी को move करना हो कोई भी स्प्रिट को, तो उसके लिए आप मोशन ब्लॉक का ही यूज कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू क्रिएट एन एनिमेशन दैट विल बी शो दैट स्प्रिट विल बी वॉक. स्प्रिट जो है वो वॉक कर रहा है, तो उसके लिए आप मोशन ब्लॉक में जाके ही ऐड कर सकते हो. टू मेक अ स्प्रिट मूव, ड्रैग द मूव ब्लॉक इनटू द स्क्रिप्ट एरिया, टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव एंड डबल क्लिक टू मूव द ब्लॉक. सो कैसे करना है, यहाँ पे आप मोशन ब्लॉक जो है उस पर क्लिक करोगे. फर्स्ट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है मूव 10 स्टेप्स वाला, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. सिंपली आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. यहाँ से ड्रैग करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है लाइक दिस. प्लीज जेनवी म्यूट योर सेल्फ. ओके, यहाँ पे ब्लॉक जो है मूव, देन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, तो आपको जितने स्टेप्स यहाँ पे लिखने हैं वो आप लिख सकते हो. अभी मैं 10 ही लिख रही हूँ, तो मैं वैसे का वैसे ही रहने दे रही हूँ, और मैं उस पर क्लिक करूंगी तो वो मूव होगा. यू हैव टू बी फोकस ऑन द स्प्रिट. आई एम क्लिकिंग ऑन द ब्लॉक, सो इट विल बी मूव. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 नहीं करवाना है, मुझे 25 करवाना है, तो आप 25 यहाँ पे चेंज कर सकते हो. Now you can click on that, so it will be moved. For example, I am writing here 50 steps and take a back here and click on it, so you can see that it will be moved. वो move हो रहा है. For example, you want to take 100 steps, so you can write it here and move it like this. So this is the first block of the motion, that is the move block. अगर आपको स्प्रिट को मूव करवाना हो तो आप मूव ब्लॉक का यूज कर सकते हो. The sprite will now move by the specified number of the steps. आप जितने नंबर्स लिखोगे स्टेप्स के उतना ही मूव होगा. ऐसा नहीं कि वो अपने आप मूव होना स्टार्ट होगा. आपको इस नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने हैं. बाय डिफॉल्ट 10 रहेगा, बाकी आपको जो चेंज करना हो आप कर सकते हो. We can give. Yes. मीन्स आपने मैम 1 मिनट, जैसे आपने लिखा है 100 स्टेप्स, तो 100 स्टेप्स तो वो आपने मीन्स उसको स्टॉप किया था? नहीं, मैंने एक ही बार लिखा है. मैं उसको क्लिक करूंगी वो मूव हो रहा है, क्लिक करूंगी तो मूव होगा. आपको उसको क्लिक करना है, वो मूव होगा. वो 100 टाइम मूव्स होगा मतलब? हाँ, उसके हिसाब से. ये जो सारा आपको दिख रहा है वो पिक्सल्स में होता है, राइट. सो पिक्सल में वो मूव होगा, और पिक्सल बहुत छोटा होता है, आपको पता भी नहीं हो कि उसकी साइज कितनी छोटी होती है. तो वो पिक्सल्स में मूव होता है, उसकी जो इमेज की साइज है उस हिसाब से. ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके, यस जानवी, व्हाट इज योर क्वेरी? मैम ये स्टेप्स वाला कैसे करते हैं? आपको कुछ नहीं करना. ये रहा आपका मोशन ब्लॉक, आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन. उसमें भी फर्स्ट है मूव 10 स्टेप्स, उसको ड्रैग करके ड्रॉप करना है, दैट्स इट.
ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन द स्क्रिप्ट एरिया, यहाँ पे जो आपको दिख रही है व्हाइट स्पेस, दैट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट एरिया। फिर वहां पे आपको अगर कोई 10 रखना है तो आप 10 रख सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके उसको इरेज करके आपको अगर चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको क्लिक करना है उसके ऊपर, वो जो ब्लॉक आपने यहाँ पे रखा है स्क्रिप्ट एरिया में उस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट जो होगी वो मूव होगी। ओके मैम। Okay, next we can give more than one instruction in the sequence by taking the blocks one below to the other। हम एक साथ बहुत सारे स्टेप्स, मतलब कि और सारे इंस्ट्रक्शन, अभी तो हमने सिर्फ मूव वाला देखा, उस तरह से आप बहुत सारे ब्लॉक्स को एक साथ ज्वाइन करके सीक्वेंस में करके स्टैक करके आप एनिमेशन बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट। जो पूरा आप ब्लॉक विथ यूज ऑफ द ब्लॉक आप जो कोड बनाओगे उसको हम बोलेंगे स्क्रिप्ट। अ सेट ऑफ द सच टेक्स्ट ब्लॉक इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, the below script will rotate the sprite clockwise by 15 degrees and then move it forward by the 20 step। यहाँ पे आपको दो दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट सीखा मूव, सेकंड है टर्न 15 डिग्रीज। यहाँ पे मैं सेम ले रही हूँ, दिस इज द क्लॉकवाइज, तो दोनों इस तरह से ज्वाइंट हो जाएंगे। यू कैन रिमूव इट ऑल्सो, आप इस तरह से उसको रिमूव कर सकते हो, फिर आपको उसके पास ले जाना है एंड उसको छोड़ देना है, तो वो दोनों एक साथ स्टैक हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट। नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस, इट विल बी हेल्ड बोथ। जब आप एक पे ही क्लिक करोगे तो दोनों एक साथ परफॉर्म होंगे, like this। Whenever you click on it, it will be rotate। I am going to take it to the okay, maybe this will be came on the original font। I not understand this. Nothing, you have to just drag and drop the 15 degrees block and join them together। just click on it, it will be take a process, वो खुद से एनिमेशन बनेगा। Mama, what means degrees? डिग्रीज मीन्स जो पूरा सर्कल होता है वो रोटेशन होता है डिग्री में, दैट इज अ डिग्री। जैसे लेंथ के लिए हम यूज करते हैं सेंटीमीटर, वैसे ही रोटेशन के लिए यूज होता है डिग्री। Okay, ma'am. ओके, वी कैन रन स्क्रिप्ट व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। ऐसा हमने अभी क्या किया, यहाँ पे सिर्फ इतना ही रखा, हमने ग्रीन फ्लैग का यूज ही नहीं किया बिकॉज वी आर नॉट एडिंग द ग्रीन फ्लैग हियर, राइट। सो for that we can use a green flag also। to do this, drag when green flag clicked block from the events group and stick it at the top of the previous script। now the script run whenever green flag is clicked। सो यहाँ पे आपको इवेंट ब्लॉक में जाना है, यहाँ पे फर्स्ट है ग्रीन फ्लैग क्लिक। अब पहले मैंने जब उसको स्टैक नहीं किया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक कर रही हूँ लेकिन कुछ प्रोसेस नहीं हो रही। but whenever I stack this script to the green flag and now I'm going to click on the green flag, so you can see the process will be held। आप देख सकते हो वो प्रोसेस पूरी हो रही है, राइट। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना हो वैल्यू तो आप कर सकते हो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। जिस तरह से हमने मूव के लिए किया वैसे ही सेम। आप जितनी बार ग्रीन फ्लैग का क्लिक करोगे वो उतनी बार मूव होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, the motion category also contains many other blocks। there are given, first is the point in direction। this block is used to move the direction। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा जो रोटेशन होता है एरिया होता है दैट इज बी इन द 90 डिग्री
above there is a minus 90 degree, below also minus 90 degree, minus 180 degree, and on the left side there is a minus 180 degree. तो उसी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो. दिस इज अ वैल्यू ऑफ डिग्रीज. मैंने जैसे बोला कि रोटेशन के लिए डिग्री का यूज होता है, तो आप डिग्री में उसको मूव कर सकते हो. द बिलो ब्लॉक मेक द स्प्रिट टर्न 15 degrees clockwise. You can type the number of degree by which you want to rotate. So first हम सीखेंगे point in the direction. मैं इसको delete कर रही हूँ अभी के लिए. Click on the motion block. You can see here point in the direction. इसका मतलब क्या होता है, वो पॉइंट करता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है. राइट साइड मीन्स द 90 डिग्री, लेफ्ट साइड मीन्स द माइनस 180 डिग्री, और अबोव टॉप साइड मीन्स द माइनस 90 डिग्री एंड बिलो मीन्स द माइनस 180 डिग्री. तो आप इस हिसाब से यहाँ पे नंबर लिख सकते हो कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरह से मूव करूंगी तो उस तरह से मूव होगा. ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो आप जैसे क्लिक करोगे वो उस डायरेक्शन में मूव होगा. वापस से मैं क्लिक कर रही हूँ और मैंने लिया 90 डिग्री. सो इट विल बी गो फॉरवर्ड. अगर आपको वापस से चेंज करना है, आपको उसको इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो आप ले जा सकते हो लाइक दिस. यस मैम ये 180 डिग्री 90 डिग्री में कैसे पता चलता है? मैंने आपको बोला जो हमारा जो फॉर एग्जांपल आपका जो स्क्वायर है उसमें राइट साइड जो होगा, स्ट्रेट की बात कर रही हूँ, स्ट्रेट में होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. फिर आपके लेफ्ट साइड पे होगा माइनस 90 डिग्री, टॉप पे होगा 0 और बॉटम में होगा 180 डिग्री. 90 ऑन द राइट साइड, minus 90 on the left side, 0 on the top and 180 at the bottom. उस तरह से वो रोटेशन होगा. नहीं समझ में आ रहा, फिर आप ये वाला लेके पॉइंट इन द डायरेक्शन, आप डायरेक्टली यही सर्कल देख सकते हो और आप अपना डायरेक्शन चूज कर सकते हो. आपको नंबर याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से डायरेक्शन चूज कर लो. पॉइंट कैसे दिखाएगा? हाँ वो पॉइंट आपको सिर्फ यहाँ पे 90 लिखा है, उस पर क्लिक करना है तो वो पॉइंट दिखाएगा. Okay, so now I'm taking the 120 here. Now I'm click on the green flag, so it will be rotate and turn also. दोनों एक साथ हुआ उसका. You can change the value here also. For example, I am taking the 90 degree, so it will be turn. वो पूरा rotate होगा 90 degree पे. Next block is the looks block. So first of all, we learned the 3 blocks over here. फर्स्ट ब्लॉक इज द मूव ब्लॉक, जिसमें अगर आपको मूव करवाना हो स्क्रिप्ट को मूव कर सकते हो. सेकेंडली वी लर्न द टर्न 15 डिग्रीज. अगर आपको टर्न करवाना हो तो आप मतलब रोटेशन करवाना हो, देन यू विल बी यूज दिस वन. दिस इज अ टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज एंड दिस इज द टर्न एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में. जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा, आप देख सकते हो. राइट, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट वन इज द क्लॉकवाइज. देन वी लर्न अबाउट द पॉइंट इन डायरेक्शन, मतलब कि आपका स्क्रिप्ट कौन से डायरेक्शन में मूव होगा. आप जब इस पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्शन आपको दिखाएगा. आप उस पे क्लिक करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. यू हैव टू टेक द एरो. 90 मीन्स द स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके नाउ डिलीट इट. मोशन ब्लॉक में हमने 4 ब्लॉक्स सीखे. फर्स्ट मूव, सेकंड इज द टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज, थर्ड इज द टर्न एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री एंड द फोर्थ इज द पॉइंट इन द डायरेक्शन, मतलब कौन से डायरेक्शन में मूव करना है स्प्रिट को. नाउ इट्स टर्न फॉर द लुक्स ब्लॉक. जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आएंगे तो मोशन में आगे के जो ब्लॉक है वो सीखेंगे, लुक्स में अलग ब्लॉक सीखेंगे. सो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मोशन में हमने सिर्फ 4 ही ब्लॉक्स सीखे. नेक्स्ट स्टैंडर्ड में नेक्स्ट ब्लॉक्स आएंगे. राइट, नाउ इट्स टाइम फॉर द लुक्स ब्लॉक्स.
The look category contain the block to change the appearance of the spread. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो जब एनिमेशन मैम होता है तो उसमें मैसेजेस भी दिखते हैं. यस, ब्लॉक्स के अलग अलग नाम भी होते हैं. हाँ, यहाँ पे आप देखो मोशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे साउंड लिखा हुआ है, सब अलग अलग होते हैं. ओके मैम. It also has a block to make a spread say something using a display callout or think bubble containing the text. आप ने अभी देखा हो कि हमने कि बनाया हुआ है या फिर आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि कॉल आउट कन्वर्सेशन होती है जिसमें कॉल आउट में लिखा होता है कि ये लोग ये बातें कर रहे हैं. So like that, if you want to display any of the text, so you can use this looks block. The say block is used to display a call out with the specific text. So let's say take it first say hello. तो वो क्या होगा, वो कॉल आउट में मैसेज पास करेगा हेलो. आई एम क्लिकिंग ऑन द ग्रीन फ्लैग सो यू कैन सी द मैसेज हियर. नाउ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको मैसेज चेंज करना है, हेलो दिस इज माय स्क्रैच प्रोग्राम, आपको ये मैसेज पास करवाना है तो आप कर सकते हो. आई एम क्लिकिंग ऑन द ग्रीन फ्लैग, तो उस तरह से मैसेज डिस्प्ले करवाएगा. अगर अब वो मैसेज डिस्प्ले करवाना आपको स्टॉप करना है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द रेड बटन, सो इट विल बी स्टॉप्ड. सेकंड, द मैम थिंग, यस, मतलब वो पिक्चर पे आएगा ऐसा. हाँ, मैसेज डिस्प्ले होगा. The Okay, ma'am. think block is used to display a think bubble with a specific text. वो थिंकिंग दिखाएगा. जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि वो मैसेज दिखा रहा है, कॉल आउट दिखा रहा है कि वो ये बोल रहा है. हाँ, अपनी से कहाँ से लिया, ऐसे वाई से. लुक्स ब्लॉक में जाके सेकंड वाला जो है वही मैंने पहले बोला, लुक्स ब्लॉक में जाओ, यहाँ पे सेकंड वाला है वो वाला लो. I just think that you have to be convert and you have to take attention on that thing. मेरे कर्सर पे सबको ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कर्सर कहाँ पे से कहाँ पे जा रहा है. राइट, सेकंड इज द थिंक वाला थिंक. Okay, now I am click on the green flag, so it will be show the bubble message. मतलब वो कुछ सोच रहा है like that. थिंक का मतलब होता है कुछ सोचना, तो वो उस तरह से बबल्स में दिखाएगा. से वाले में क्या था कि वो बोल रहा है ये चीज है, और थिंक में क्या होगा कि ये कुछ सोच रहा है. दैट विल बी पास ऑन द बबल्स. द हाइड ब्लॉक इज यूज्ड टू हाइड द स्प्रेड. सो लेट्स सी दिस. Stopping it. Here you can see that the hide bubble, हाइड ब्लॉक, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो हमारा जो स्प्रिट है वो हाइड हो जाएगा. वो है वहीं पे लेकिन वो हाइड हो गया है. यू कैन स्टॉप इट. नाउ यू कैन फॉर द नेक्स्ट वन, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द hidden split again, so you can use the show block is used to show the hidden split. Whenever you click on that, so you can see the split again on the stage. मैम हाइट से वो चला कैसे गया. वो ब्लॉक है जिसका यूज होता है छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए. ओके मैम. The following script will display a call out whenever split is clicked. ये वाला मैसेज हमने पास किया. फर्स्ट हमने लिया कि ग्रीन फ्लैग पे अगर क्लिक करेंगे तो ये वाला मैसेज पास होगा. राइट, ग्रीन फ्लैग पे मैंने क्लिक किया, आपको मैसेज दिखा. नाउ सेकेंड thing is that you have to take in place of the green flag when spread clicked. यहाँ पे आप इवेंट में जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो when this split is clicked. थर्ड ऑप्शन when this split is clicked. Now whenever you place the green flag, nothing will be happen because we are taking when this split is clicked. जब मैं split पे क्लिक करूंगी तो वो मैसेज पास करेगा, स्टॉप पे करूंगी तो स्टॉप हो जाएगा. आई एम क्लिकिंग ऑन द स्प्रिट, देन इट विल बी पास द मैसेज. ऐसा नहीं कि आप यही मैसेज पास करो. फॉर एग्जाम्पल
You want to pass the message? Yes. So it will be. Now I'm click on the spread, so it will be pass the message. Yes. Next. Okay, next thing we will be learn on the next class, that will be on the next Wednesday. Here we done our class. So if you have a query, so you can ask me. Ma'am, Yes. ma'am, I have no more questions. I can leave now. क्या? I have no more queries, so I can leave. Why, Janvi? You have to listen others' query na? Ma'am, I have not queries, so I am leave. Nobody can believe. Ma'am, I have a query. Yes, Kiran, ask. मैम ये मीन्स हमें जो भी करना हो हम ये इवेंट्स की मदद से कर सकते हैं. इवेंट्स के यूज करके कैसे? अगर आपको ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना हो तो आप फर्स्ट वाला लोगे. अगर आपको स्प्लिट पे क्लिक करके मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो आप ये वाला ब्लॉक ले सकते हो. फिर बाकी की चीजें तो मोशन ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक में आएगी ना. यस मैम. यस चित्राली. मैम ये आपने जो स्क्रैच बताया है वी कैन डाउनलोड इन ऑन कंप्यूटर और मोबाइल. नॉट इन मोबाइल. कंप्यूटर में आपको डाउनलोड करना है. फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि उसके लिए वेबसाइट भी यूज होती है, वहां से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो. ओके और मैम तुम आई राइट हैव डाउन. डाउनलोडेड माय टैबलेट. ओके, दैट इज ओके. टैबलेट में भी होगा. मोबाइल फोन में आपके मोबाइल को प्रॉब्लम होगी. पहले तो वो अच्छे से चलेगा, फिर आपका मोबाइल हैंग होने लगेगा, फिर वो खराब हो जाएगा. इसकी वजह से मैं मना कर रही हूँ, मोबाइल फोन में आप टाइम मत करना इसको. मैम यस.